Okay. Hi everyone. My name is Ruchan and I welcome back you to India's biggest online education platform, that is the Your Pedia Group. And today we are going to solve questions of PPSC, that is Punjab Public Service Commission. तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दैट मीन्स कि उसमें एनवायरमेंट भी होगा, हाईवे भी होगा, सर्वे भी है, सॉइल भी है, स्ट्रक्चर भी है, आरसीसी भी है, स्टील भी है. एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर बिकॉज क्योंकि जब आपको पेपर आता है तो सेक्शन वाइज नहीं आता, पेपर इज ऑल्सो मिक्सड. तो विल बी सॉल्विंग अ फ्यू मिक्सड क्वेश्चंस, ओके, जो प्रीवियस ईयर आ रखे हैं. But before that, for those of you who don't know me, this is something about myself. My name is Ruchin Jain, Ruchin Tejawat. I have completed my post graduation from IIT Kanpur. Also, I have qualified engineering services and I have secured an all India rank of 165 in GATE examination. And till date, I have mentored more than 10,000 of students in my journey of teaching experience of more than 6 years. Apart from this, I have also worked as project engineer in Mumbai Railways and various other numerous exams I have qualified, which include BARC, ISRO, DRDO, and many other examinations. So, with that being said, let's move on to solving a few numericals. Okay, so let's begin. This is a question of PPSC, a very simple question. All the questions are really simple, it's not tough. If you are preparing for like simple GATE, TAC, your state level service public commissions, PSCs, okay, public service commission exam, the questions are very simple. Like, let's see the first question. It is, if a simply supported concrete beam, okay, pre-stressed with a force of 2500 kilonewton, pre-stressed with a force of 2500 kilonewton, is designed by load balancing for an effective span of, let's say, it is 10 meters. ठीक है, और टोटल लोड कितना है 40 किलो न्यूटन पर मीटर. ये दे रखा है. इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ डेड लोड, लाइव लोड, जो भी है सब कुछ इंक्लूड करके 40 किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा है. हमें बताना है व्हाट इज द सेंट्रल डेप्थ ऑफ द केबल प्रोफाइल. ओके, देखते हैं यहां पे. जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई बीम है. ओके, दिस इज द बीम. अब यहां पे इस जगह पे दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस. हियर देयर इज अ लोड. लेट्स से लोड इज 40 किलो न्यूटन पर मीटर जो हमें दे रखा है यहाँ पे. एंड हियर this is the profile. Okay, we have to find the central depth. Central depth means depth at the center. It is 10 meter. Okay, and here is P. So as per a load balancing method, P is 2500 kilonewton given to us. This will be equal to WL square divided by 8 into E. This is the formula that we use. E will come out to be WL square upon 8P. Okay, WL square by 8P. W is given as 40. L square is 10 square upon 8 into 2500. Okay, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 0.2 मीटर. Nearly this is 200 mm. Okay, तो correct answer 200 mm. So this question is of RCC. Let me change the color. Okay, ये क्वेश्चन हमारा था आरसीसी का. ऑलराइट, क्वेश्चन बहुत आसान था. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स. बेसिकली किसका है, ओसीएफ का है. ओके, तो इसे देखते हैं. हमें क्या दे रखा है, इन अ हाइड्रोलिक जंप इन अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल. बहुत जरूरी है, क्या नोट करना है, रेक्टेंगुलर चैनल दे रखा है. रेक्टेंगुलर चैनल. द डेप्थ ऑफ फ्लो बिफोर द जंप, द डेप्थ ऑफ फ्लो बिफोर द जंप. मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल चैनल है.
अब यहाँ पे ऐसे हाइड्रोलिक जंप बना, समथिंग लाइक दैट, कुछ ये वाटर लेवल है। तो यहाँ से जस्ट लेट मी चेंज द कलर। ओके, लेट्स से कि ये जो है हमारा y1 है और ये हमारा y2। ओके, द डेप्थ ऑफ फ्लो बिफोर द जंप इज 0.5। ओके, 0.5 मीटर ये दे रखा है। ओके, एंड द फ्रॉड्स नंबर इज √10। मतलब ये कितना दे रखा है, √10। देन द डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर द जंप। ओके, यानी कि हमें y2 का वैल्यू निकालना है। ओके, अब y2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, y2 अपॉन y1 इक्वल टू 1/2 इंटू √1 + 8 FR1 का स्क्वायर -1। करेक्ट। तो यहाँ पे y2 अपॉन y1 के वैल्यू 0.5, दैट इज इक्वल टू 1/2। सारी वैल्यूज बस इनपुट कर देनी है यहाँ पे। 1 + 8 इंटू √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। करेक्ट। तो यहां से हमारे पास y2 अपॉन 0.5, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा ये, दिस विल बी 80, 80 + 1 81, 81 का √9, 9 - 1 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो y2 कितना आएगा, 4 इंटू 0.5 दैट इज 2 मीटर्स। करेक्ट। y2 हमारे पास कितना आएगा, 2 मीटर सिंपली। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now this question is also from FM only, FM का ही है। Basically it is from fluid kinematics। Okay, fluid kinematics का है। तो let's see क्या है। Which one of the following fields represent a possible fluid flow? Okay, possible fluid flow। तो possible fluid flow कब होता है, जब वो continuity equation को satisfy करता है। Okay, किसको satisfy करता है, continuity equation को। Okay, so that is del u by del x plus del v upon del y इक्वल टू 0। जब ये आ जाएगा, ओके, तब हमारी इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी और वो फ्लो फील्ड पॉसिबल है। ओके, तो फर्स्ट वाले को रखते हैं। ये यहां पे क्या है, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू y। करेक्ट। तो अब फर्स्ट वाले को देखते हैं, u इक्वल टू x, v इक्वल टू y। एक एक करके देखना पड़ेगा। तो डेल u बाय डेल x की वैल्यू रखते हैं, क्या आएगा, डेल u बाय डेल x हमारे पास 1 आ जाएगा, डेल v अपॉन डेल y मेरे पास में 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को यहाँ पे रखेंगे तो ऑब्वियसली विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाला हट गया, फर्स्ट वाला आंसर नहीं है। लाइकवाइज सेकंड करते हैं, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, एंड v इक्वल टू वाई स्क्वायर। करेक्ट। तो ये कितना आएगा, डेल u बाय डेल x 2x and similarly del v upon del y, this will be equal to 2y। करेक्ट। अगर इन दोनों को रखेंगे स्टिल इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन भी गया। अब आते हैं थर्ड वाले पे। आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज सिंपल, u इक्वल टू एक्स, v इक्वल टू -y। इसको चेक करते हैं। तो डेल u बाय डेल x कितना आएगा, डेल u बाय डेल x 1, डेल v अपॉन डेल y दिस विल बी इक्वल टू -1। ओके, तो 1 - 1 इक्वल टू 0 ऑब्वियसली करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पे क्या है, सी वाला ऑप्शन। देख रहे हैं कितना आसान है, वेरी सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, विच वन ऑफ फॉलोइंग, ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्च टैंक इन अ पाइपलाइन कैरिंग वाटर। ओके, अब सर्च टैंक किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, सर्च टैंक को बेसिकली हम प्रोवाइड कराते हैं टू प्रिवेंट अगेंस्ट वाटर हैमर। ओके, ये इसका मेन फंक्शन होता है। ओके, स्टोर वाटर इज ओके बट इट इज नॉट द मेन पर्पस। ओके,
टू इंक्रीज द प्रेशर थ्रू आउट द पाइपलाइन, बिल्कुल नहीं। टू स्टोर ओवरफ्लोइंग वाटर, यस इट इज अ पार्ट, बट अगर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना तो दैट इज डी ऑप्शन, टू प्रोटेक्ट द पाइपलाइन अगेंस्ट वाटर हैमर। ओके, तो आपको जब भी पीएससी के पेपर में जब भी ऐसा लगे कि आपको 2 या 3 ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं, तो ट्राई एंड फाइंड विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ऑलराइट, ओके, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंट डेप्थ रेशियो ऑफ अ हाइड्रोलिक जंप in a rectangular channel is 10.3. Okay, the Frod's number at the beginning of jump is, हमें ये बताना है what is the Frodd number at the beginning of the jump. Alright, अब यहाँ पे देखें, एक थोड़ा सा हल्का सा इसमें समझने वाली चीज है। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप है, ओके, समथिंग लाइक दिस इज y1 और ये हमारा वाटर लेवल हो गया y2। ओके, अभी जो 10.3 है, हमें क्या दे रखा है, the sequent depth ratio of a hydraulic jump in a rectangular horizontal channel. Okay, तो ये हमें रेशियो दे रखा है, तो क्या ये y1 अपॉन y2 है या फिर y2 अपॉन y1, क्या है ये? इसके लिए सिंपल सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, इस कलर बदल दूंगा। ओके, सिंपल सा कॉमन सेंस क्या है, देखें, ये y2 और ये है वैल्यू ऑफ y1। ओके, नाउ आई नो दैट y2 will always be greater than y1, हमेशा ऐसा ही रहेगा। कलर थोड़ा सा डार्क कर दें। ओके, हमेशा यही होगा, y2 will always be greater than y1, ओके, बिकॉज दिस इज हाइड्रोलिक जंप। और अगर मेरा रेशियो 1 से बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स हमें जो रेशियो दे रखा है y2 अपॉन y1 दे रखा है 10.3। ऑलराइट, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे फ्रॉड्स नंबर एट द बिगिनिंग ऑफ द जंप, यानी मुझे निकालना है f1। तो इसके लिए सिंपली we'll यूज दिस फॉर्मूला, y2 upon y1, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट 1 + 8 f1 का स्क्वायर -1, करेक्ट, यहाँ पे 1 प्लस लिखता है। ओके, y2 upon y1 10.3 इक्वल टू 1/2 इंटू 1 + 8 इंटू, मुझे निकालना है f1 स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं -1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, दिस विल गिव 20.6 + 1, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 + 8 f1 स्क्वायर। ओके, तो आप इसको सॉल्व करें, मैं भी इसे सॉल्व कर रहा हूं। .62 f1 हमारे पास में कुछ निकल के आ रहा है 7.628। ओके, 7.628, तो मोस्टली दिस इज नियर टू दिस वैल्यू 7.63। ओके, नियर टू 7.63। ऑलराइट, तो आई होप आपको कुछ कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। हमने अभी बस थोड़े से क्वेश्चन किए हैं, आगे और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको और भी दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।